Dear students, we are going to solve 3.3 algebra question number 6. So to solve such questions in textbook it is given like they are HOTS type of questions, but they are very easy. So let's see how the sixth question is. So they have given the value of s of n, that is s55. The value is 3300. Then they say that find 28th term in AP. एक सीक्वेंस होगा जिसमें पूरे 55 टर्म्स के जो वैल्यू है वो 3300 है। उस सीक्वेंस में, उस AP में 28th टर्म कौन सा है ये हमें ढूंढ के बताना है। तो हमें पता है कि किसी भी टर्म की वैल्यू ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a + n - 1 × d। तो हमारे पास a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, पर गिवन वैल्यू उन्होंने दिया है s55 = 3300। तो हम पहले सम ऑफ n का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसमें से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को t ऑफ n के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सो वी विल गेट t28। लेट मी एक्सप्लेन यू, एज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन द बोर्ड, let me explain you step by step. This is given s of n formula. S of n means 55. So n is 55. N upon 2, 55 upon 2. 2a same, n minus 1 means n is 55, 55 minus 1 d. This comes as 2a plus 54d. Okay? This remains same. The value of S55 they have given 3300, which comes here. This same 27 upon, sorry, a plus 27d. So I have taken 2 common from them. Okay, 2 is common from here. So 2 out, here becomes 27. So this 2 and this 2 get cancelled. So we get 55 into a plus 27d. So I take this 55 down in the denominator on the other side. 55 ones are, or you can cancel by 11. 11 5s are 55, 11 3s are 33. 5 1s are 5, 5 6 are 30. So you get a plus 27 equals to 60. Make it as equation 1, because in further solution we are going to use it. Now we know that the formula for finding any term is t of n plus n minus 1 into d. So t of n is which term we have to find? 28. So n becomes 28. A plus a we don't know. N is 28 minus 1 into d. So this comes to a plus 27d, which is like this. So that's why t28 becomes 60 from equation 1. So therefore 28 term is 60. Easy? So it's not any HOTS type question. The thing is that whatever is given, we should be able to use it properly and bring it to the solution. That's it. Dear students, let's solve another question of 3.3, that is question number 7. But before solving that, let me clear some basics. 3 consecutive terms means what? It means 3 continuous numbers. 3 continuous numbers. Example, अगर 3 continuous numbers हैं तो मुझे स्टार्टिंग से आगे की तरफ जाने से बेहतर है कि मैं बीच का नंबर लूं और मेरे पहले और मेरे बाद के नंबर को मैं चेक कर लूं, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं या नहीं पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, बीच में मैंने लिया 4, तो इसके पहले, जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा? 3, और नेक्स्ट कौन सा होगा? 5। तो एक्चुअली हो क्या है, यहाँ पे हो रहा है एक नंबर है और उसके पहले वाले नंबर में ना वो माइनस किया गया, 1 माइनस किया गया है
और उसके नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस किया गया है। तो इसका मतलब होता है एक का डिफरेंस है और वो ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इसकी जगह पे a ले लूँ तो पिछला नंबर होगा डिफरेंस ना, a माइनस डी, और नेक्स्ट नंबर होगा a प्लस डी। कब ऐसा कब कर सकते हैं? जब हमें कोई भी नंबर पता नहीं है लेकिन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी 7th क्वेश्चन में यही बताया गया है कि 3 consecutive numbers are given and their sum is sum 2 and their product is sum 3। वही हमें ढूंढना है बस। Seventh question: in an AP, 3 consecutive numbers are there. 3 consecutive numbers are there. Their sum equals to 27. This is one thing here. And 3 consecutive numbers product equals to 504. ओके, सो तीनों नंबर का सम 27 आता है और तीनों नंबर का प्रोडक्ट 504 आता है। फाइंड द टर्म्स, उन्होंने दिया भी है, हिंट दिया है कि यूज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी एज 3 consecutive numbers। तो ऐसा हिंट दिया है तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फाइंड द टर्म्स, तो वो कौन से नंबर्स हैं? फाइंड द टर्म्स, तो मतलब वो नंबर कौन से हैं? अगर मैं एक a लेता हूँ, एक a माइनस डी लेता हूँ, एक a प्लस डी लेता हूँ, तो वो तीनों कौन से नंबर्स हैं जिनका प्लस 27 होगा, प्रोडक्ट 504 होगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले तो सपोज करेंगे, जब पता नहीं होता तो कुछ तो सपोज करते हैं। लेट 3 consecutive numbers are a minus d, a plus b। Therefore, from first condition, इसके हिसाब से a minus d plus a plus d equals to 27 given। ब्रैकेट ओपन कर दो, a minus d plus a plus d 27 माइनस d प्लस d कट हो गया, a plus b, a equals to 27, a equals to 27 upon 3 equals to 9। तो a equal to 9 मिल गया। ओके, इसी तरीके से दूसरा कंडीशन दिया उन्होंने, फ्रॉम कंडीशन 2, यहाँ से उनका प्रोडक्ट 504, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 504 गिवन है। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को करते हैं। ठीक, अब इससे इसको कर लो या इससे इसके को, एक ही बात होगी। a इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन a इंटू डी ए डी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a बाहर ले लो आप, इस तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इजी करने के लिए क्या करते हैं, a को बाहर लेते हैं, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 504।
हमें पता है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504. ओके, क्यों? a प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे हमें a की वैल्यू क्या ढूंढा है हमने? 9. पुट a इक्वल्स टू 9, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504. 9 इंटू 9 स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504. 9 इंटू 81 करो, 9 1 9, 9 8 72 माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504. 729 इसको इधर लेके आओ, माइनस 504 इक्वल्स टू, ये पूरा उधर जाने दो, so it becomes 9d स्क्वायर. डी स्क्वायर वहां पे रहने दो, माइनस करो, 9 माइनस 4 5, 2, 7 minus 5 2, 9 comes down. ओके, सो इसका स्क्वायर रूट ले लो, so d equals to 15 upon 3. So 3 1 the 3 5 इधर लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 9 का 3 होता है, कैंसिल किया तो 5 आया, तो d 5 मिल गया. तो डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता जब हमें a और d की वैल्यू मिल गई तो हम 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स थे उनको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो लास्ट में, therefore 3 consecutive numbers are, पहला तो लिख लो a, तो a कितना है? 9. फिर a माइनस b, तो हो जाएगा 9 माइनस b कितना मिला? 5. a माइनस b, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4. ठीक, a प्लस b, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14. तो यहाँ पे हमने इसको पहले लिखा था, therefore नंबर्स कौन से होंगे? अगर इस तरह हम सॉल्व करें तो नंबर्स बन जाएंगे ऐसे, 4 9 14. इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 14 9 और 4. तो इस तरीके से हमें ये नंबर्स मिल गए. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. सो दिस इज हाउ इट वाज टू बी सॉल्व्ड. इजी? Dear students, let's solve the last question, question number 8 of 3.3 algebra. The question says that find 4 consecutive terms in an AP. Find 4 consecutive terms of an AP. फिर उन्होंने 2 कंडीशन दिया हुआ है. पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट the 4 consecutive terms are, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, a माइनस d,
a प्लस डी, अब और एक कदम आगे जाना तो a प्लस टू डी। तो ये 4 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, उनका पहला कंडीशन कहता है सम ऑफ दीज नंबर्स whose sum is 12, तो इन सबका सम 12 है। a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, दिस इज गिवन। 1 2 3 4, 4a प्लस d माइनस d कैंसिल, बचा 2d, 4a प्लस 2d equals to 12. Okay, 4a plus 2d equals to 12. So इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2a plus d equals to 6। ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है उनका प्रोडक्ट जो है, द सम, सॉरी, उनका जो सम है थर्ड और फोर्थ टर्म का, ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। उनका सेकेंड कंडीशन कहता है जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, इन दोनों का सम, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, that is a plus b plus a plus 2d equals to 13. So a plus a 2a, b plus 2d 3d, इधर कुछ नहीं है तो 1 b plus 2d 3d equals to 14। ये कुछ डिवाइड नहीं हो सकता है, so let this be question 2। तो इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल गए। फाइनली हमें ढूंढना है 3 टर्म्स को, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, तो अगर एक को हम एलिमिनेट कर दे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर उस वैल्यू को यूज करके दूसरी ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स डू इट। ये बड़ा है, ये इक्वेशन को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 है 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, 1 है 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पता है साइमल्टेनियसली जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है। ये माइनस प्लस था तो माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, तो इस वजह से हमें मिलेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1d becomes 2d, that is 14 minus 6 8, d equals to 4। Okay, now put this value in any equation, either this or this, we will get a। a plus 4 equals to 6. So 2a equals to 6 minus 4. So 2a equals to 2. a equals to 1. अब हमें a मिल गया है, d मिल गया है, तो क्या हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं? Yes. Therefore a is equal to 1, d is equal to 4, therefore the 3 consecutive numbers are, पहला a minus d, तो a कितना 1 minus d 4, we get minus 3। फिर दूसरा क्या है a is how much 1, तो 1 मिल गया,
Next a plus d, that is 1 plus d is how much? 4, 5. Next is a plus 2d. So a is how much? 1. 2d means 2 into 4. So that is 8. That becomes 9. Therefore, numbers are which numbers? Minus 3, 5, minus 3, 1, 5, 9. Or 9, 5, 1, minus 3. Okay, this is how it was to be done, and we have solved it. They have given as a Hertz question. It's not a Hertz type question, it's very easy. Only thing is that assume, find the sum, find the product, and get the numbers, 3 consecutive numbers. All the best, God bless you, take care, have a nice day.